ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ہندوستانی عازمین حج کا کوٹا 1,75,000۔ حج سلاٹ میں کمی کے لیے پرائیویٹ ٹور آپریٹر ذمہ دار، وزارت اقلیتی امور کی وضاحت۔ مودی تلنگانہ کی اسکیموں سے پریشان، کانگریس کے خلاف بی جے پی اور بی آر ایس متحد، پارٹی لائن پار نہ کریں، سی ایل پی اجلاس سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ کوشائی گوڑے میں 70 سالہ خاتون کا ملازمین نے کیا قتل، لاش پر رقص کا ویڈیو منظر عام پر۔ حیدرآباد کے نوائی علاقے چیتنا پوری میں وائلڈ ہارٹ پب پر پولیس کا دھاوا، 27 افراد بشمول 17 رقاصائیں گرفتار۔ رین بازار پولیس اسٹیشن کے حدود میں مسیح الدین کے قتل کا معمہ حل، 8 ملزمین گرفتار، آلات جرم ضبط، مشتبہ مفرور ملزمین کی بھی تلاش جاری۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مرکزی وزارت اقلیتی امور نے وضاحت کی ہے کہ سعودی حکومت نے اس سال ہندوستانی عازمین کا کوٹا 1.75 لاکھ رکھا ہے۔ وزارت کی طرف سے بتایا گیا کہ حج سلاٹ میں کمی اور نقصان کے لیے پرائیویٹ ٹور آپریٹر ذمہ دار ہیں۔
वजारत की तरफ से एक बयान में यह बताया गया कि सऊदी वजारत हज ने नुस्ख पोर्टल को खोलने का ऐलान किया है और मरकजी हुकूमत की मदाखलत के बाद 10,000 आज़मीन हज को सफ़र मुक़द्दस की सहूलत हासिल होगी। वजारत की तरफ से यह भी कहा गया कि हम सऊदी हुकूमत से मजीद आज़मीन की मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। बताया जाता है कि 52,005 आज़मीन की तादाद में कमी हुई है। इससे खानगी टूर ऑपरेटर्स को नुकसान होगा। इस सिलसिले में कई कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत को मकतूब भी रवाना किया था। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस सिलसिले में मरकज़ को मकतूब रवाना किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना की फलाह बहबूद की स्कीमों से परेशान हैं। CLP इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि चंद दिन पहले तक मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और 20 संजय तेलंगाना की हुकूमत पर तनकीदें किया करते थे, लेकिन अब खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मैदान में उतर गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि SC ज़ुमराबंदी से भी वज़ीर आज़म परेशान हैं। तबक़ाती मरदमशुमारी BJP के लिए मौत बन चुकी है। पूरा मुल्क तेलंगाना मॉडल की बात कर रहा है। यही वजह है कि BJP और BRS मुत्तहिद होकर आज कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन मसनूई ज़हानत यानी कि AI का इस्तेमाल करते हुए HU की अराजी को लेकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर आज़म आज उसी को लेकर बुलडोज़र चलाने की बात करते हैं। वज़ीर आला का यह भी कहना था कि आज कांग्रेस बारीक चावल की स्कीम पर अमल कर रही है। BJP को यह बताना चाहिए कि आखिर उसकी किस रियासत में बारीक चावल की स्कीम पर अमल हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कल से 2 जून तक हर रुकन असम्बली को अपने हलके का दौरा करना होगा और वो खुद 1 मई से 2 जून तक अवाम से मुलाकात के लिए खुद को वक्फ कर देंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम मुल्क भर में मिसाली स्कीम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हर असम्बली इलाके में मुस्तहक़ अफराद को ये मकानात मिलने चाहिए और वो अवामी सतह पर इसकी निगरानी करेंगे और बेदारी मुहिम चलाएंगे। भू भारती के जरिए नाजायज कब्जों से अराजियात को वापस लेकर किसानों के हवाले किया जाएगा। अवाम में जाना और स्कीमों को हकीकी फायदा बताने से ही दोबारा इख्तिदार का रास्ता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के पहले मरहले के तहत इस्तिफादा कुनिंदगान में फीकस 1 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर P. श्रीनिवास रेड्डी, सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़ के अलावा पार्टी के अरकान मुकर्रना मौजूद थे। वज़ीर माल P. श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के मुस्तहक़ अफराद में 20 करोड़ 19 लाख रुपए की रकम जारी की गई है। हुकूमत ने रियासत में गर्मी की लू से मुतासर अफराद को डिजास्टर रिलीफ फंड से माली इमदाद जारी करने का ऐलान किया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार की दस्तखत से इस खुसूस में हुक्मनामा 5 जारी किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक गर्मी की तपिश से इंतकाल कर जाने वालों के वर्सा को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। धूप में काम करने वाले तामीराती मजदूर, ज़रई मजदूर, यौमिया काम करने वाले और दीगर तबका जो गर्मी की शिद्दत लू लगने से फौत हो जाते हैं, उनके वर्सा को ये रकम दी जाएगी। हुक्मनामे में महकमा मौसमियात के हवाले से बताया गया कि रियासत के कई अजला बशमूल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो गर्मी से राहत के लिए दरकार इक़दाम करें। लू लगने से फौत होने वालों के वर्सा को मंजूरा बतौर एग्रेशिया जारी किया जाए। हुकूमत तेलंगाना ने 2030 तक तिजारती मकासद के लिए 2030 तक 20 करोड़ मुरब्बा फीट जगह फराहम करेगी। वजीर IT व सनअतें श्रीधर बाबू ने सिटीजन फाइनेंशियल ग्रुप USA के जॉइंट वेंचर सिटीजन ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए ये बात बताई। सेंटर को यहाँ पर बताया गया है कि आला टेक्नोलॉजी के ताउन से नानकरामकुले में कायम किया गया है। हैदराबाद ग्लोबल बिजनेस हब के तौर पर उभर कर आया है। हर साल इसने तरक्की के मनाजिल तय किए हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां यहां पर अपने कारोबार शुरू कर चुकी हैं। 3 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार फराहम किया गया है। आइंदा 5 साल तक तेलंगाना की बुनियादी घरेलू पैदावार $1 खरब तक पहुंच जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में सरमाकारी को फ़रोग़ हासिल हुआ है। सनअती बरादरी को हुकूमत पर एतमाद रखती है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जेश रंजन और मल्टीनेशनल इदारों के सरकर्दा ओहदेदार इस तकरीब में शरीक थे।
बीआरएस के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत में किसान परेशान हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बास किसानों की फसलें पानी न होने से सूख चुकी हैं और बास किसानों को गैर मौसमी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों के हालात इंतहाई अबतर हैं। कांग्रेस के मंशूर में किसान डिक्लेरेशन में किसी किस्म की फसल को नुकसान पहुंचने पर मुआवजे का वादा किया गया था। हौलदार किसानों को भी मुआवजा देने का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि फसल बीमा स्कीम लाने का वादा किया गया, वो भी अमल नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासर होने वाले किसानों को फौरी मुआवजा अदा किया जाए। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि बीआरएस के कारकुनों को जो ओहदेदार और कांग्रेस के लीडर्स हरासा कर रहे हैं, उनके नाम गुलाबी डायरी में लिखे जा रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कविता ने कहा कि हम अपने पार्टी वर्कर्स और लीडर्स के साथ खड़े हैं और जो भी जुल्म करेगा उन्हें जवाब दिया जाएगा। कविता का यह भी कहना था कि केसीआर अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं रौडी तर्ज की खातून हूं। अगर किसी ने हमारे कारकुनों को धमकाया तो हम उससे सबक सिखाएंगे। वक्फ कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर हफ्ता 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले एहतजाजी जलसे में शिरकत की आवाम के मुख्तलिफ तबक़ात को दावत देने रुकन असम्बली कारवान ने अपने हल्के में दौरा करते हुए मुलाकात की। अहले इल्म व दानिश अफराद, स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मस्जिद कमेटियों के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए उन्होंने वक्फ कानून से होने वाले नुकसानात से वाकिफ कराया। रुकन असम्बली ने कहा कि मुल्क के कानून दस्तूर को पामाल करने और मुसलमानों से औकाफी जायदादें व दीगर इमलाक छीन लेने के मकसद से यह कानून बनाया गया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह सयाह कानून के खिलाफ दारुस्सलाम के एहतजाजी जलसियाम को कामयाब बनाएं। इस मौके पर हल्के के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सदर मजलिस की हिदायत पर नामपल्ली जूनियर कॉलेज का दौरा करते हुए पार्किंग की जगह का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले वक्फ तरमीम बिल 2025 की मुखालिफत में एक जलसा दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाला है। इसके लिए पार्किंग और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मौसर इंतजाम ज़रूरी हैं। अलावाजी कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में ट्रैफिक कमिश्नर जुएल डेविस से भी नुमाइंदगी की गई है। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन और रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने सदर मजलिस की हिदायत पर डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर पी गोपी IAS से भी मुलाकात करते हुए दारुस्सलाम के अतराफ अकनाफ के खुले इलाक़ाजात में पार्किंग फराहम करने की दरख्वास्त की है। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस की मौसर नुमाइंदगी पर कैंसर हॉस्पिटल के करीब पीने के पानी की बड़ी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे पानी न सिर्फ अवाम बल्कि कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी फराहम होगा। मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मंगल के दिन इस प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में मंगल की दोपहर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से अवाम को गर्मी की शिद्दत से आरजी तौर पर राहत मिली। कई इलाकों से ज़ालाबारी की इत्तला मिली है। गच्चीबौली, पंजागुट्टा, मणिकुंडा, टोली चौकी, अमीरपेट, नारसिंगी, राजेंद्र नगर, चार मीनार, खैरताबाद, जुबली हिल्स, मलकपेट, चादरघाट, दिलसुख नगर, याखुतपुरा, दबीरपुरा, हुसैनी आलम और दूसरे इलाकों से भी बारिश की इत्तला है। तेज हवाओं की वजह से बाज़ मकामात पर दरख्त भी गिरे। सड़कों पर पानी के जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्ती की गई। बरकी मजदूरी की भी शिकायत मिली है। हैदराबाद के करीबी अजला से भी बारिश की इत्तला मिली है। हैदराबाद के करीबी अजला वखाराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी में भी बारिश हुई है। शदीद बारिश के दौरान चंद्रानगुट्टा चौराहे के पास सड़क के बीच लगा हुआ दरख्त उखड़कर ऑटो पर गिर गया। मंगल के दिन दोपहर तेज हवाओं के साथ चंद मिनटों की बारिश में मुख्तलिफ मकामात से दरख्तों के गिरने की इत्तला मिली है, लेकिन चंद्रानगुट्टा में ऑटो पर दरख्त गिरने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलने पर बल्दिया के डिजास्टर मैनेजमेंट अमले ने दरख्त को काट कर मकाम वाक़े से हटाया। कुछ देर के लिए सड़क पर ट्रैफिक भी जाम रही। महकमे सिदारत रिश्वत सतानी ने एक और बदउनवान ओहदेदार को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ACB के प्रेस नोट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर अर्बन बायोडाइवर्सिटी चारमीनार जोन KV श्रीनिवास को बिल्स की मंजूरी के सिलसिले में 70,000 रुपए की रिश्वत तलब करने पर गिरफ्तार किया गया।
बताया गया कि जीएचएमसी के अर्बन बायोडाइवर्सिटी शोबे को 2.2 लाख रुपए प्लांट का सामान सरबराह किया गया था और उसी के बिल को मंजूर करने के लिए श्रीनिवास ने रिश्वत तलब की थी। इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए श्रीनिवास को गिरफ्तार किया गया और उसे एसीबी की अदालत में पेश कर दिया गया। कुशाईगुड़े में मोमर खातून के कत्ल का सनसनीखेज वाकया पेश आया है। कम उम्र लड़के ने कत्ल के बाद मकतूल की लाश पर रक्स का वीडियो भी बनवाया था। तफसीलात के मुताबिक 11 अप्रैल को कुशाईगुड़ा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के साकिन 70 साल राजस्थान के साकिन कमला देवी का उसी के पास मलगी में काम करने वाले कम उम्र लड़के ने कत्ल किया और कत्ल के बाद मुलजिम ने मकतूला के बेंगलुरु में मुकीम एक रिश्तेदार को वीडियो भी पोस्ट किया। पहले तो इसे नजरअंदाज किया गया और बाद में पुलिस को इत्तला दी गई। कुशाईगुड़ा पुलिस ने जब कमला देवी के घर की तलाशी ली तो उसकी लाश मसरूदा हालत में पाई गई। कुशाईगुड़ा पुलिस ने लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बताया जाता है कि 30 साल पहले अपने शौहर के साथ कमला देवी हैदराबाद मुंतकिल हुई थी और यहां पर इस जोड़े ने अपनी मेहनत से चंद मलगियां बनाई थीं। 50,000 रुपए इन मलगियों का किराया मिला करता था। मुलजिम जो कि कम उम्र बताया गया है कमला देवी के पास ही काम किया करता था, लेकिन कुछ दिनों से कमला उस पर बरहम थी। 11 अप्रैल को रात 11:30 बजे कमला देवी का कत्ल हुआ। अब ये मामला मंजर-ए-आम पर आया है। कुशाईगुड़ा पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके चेतनापुरी में वाक़े पब पर धावा करते हुए चेतनापुरी पुलिस ने 27 अफराद बशमुल 17 रक्कासाओं को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मुंबई से रक्कासाओं को लाकर पब में ग्राहकों को राग़िब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह धावा किया गया। गुज़िश्ता कई दिनों से वाइल्ड हार्ट पब में इस तरह की सरगर्मियां जारी थीं। पब के इंतजामिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। रेन बाजार पुलिस ने 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी शब दबीरपुरे में हुए मोहम्मद मसीउद्दीन के कत्ल में मुलविस 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इंचार्ज डीसीपी सौजोन एन श्वेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रमजान में दबीरपुरे के पास एक दुकान को लेकर मसीउद्दीन की जिलानी के साथ बहस व तकरार हुई थी। जिलानी और उसके साथी मसीउद्दीन की तरफ से मुमकिना खतरा महसूस कर रहे थे। मसी को रास्ते से हटाने के लिए जिलानी ने अपने साथियों उमर खां, आरिफ खां, गौसुद्दीन, तबरेज, इब्राहिम, बशीर और अबू बकर को अपने मंसूबे में शामिल किया। 13 अप्रैल की रात मसी के दबीरपुरे में मौजूद होने का पता चलने पर जिलानी ने अपने साथियों को तलब कर लिया और रात 1 बजे दरमियानी शब मौका देखकर मसीउद्दीन पर मौलिक हथियारों से हमला किया गया। मसीउद्दीन की बरसरे मौका मौत हो गई। इंचार्ज डीसीपी ने बताया कि मसीउद्दीन के भाई ने बाद दूसरे अफराद के भी इस कत्ल में मुलविस होने का शुबा जाहिर किया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यादगिरी थिएटर संतोष नगर के पास 15 अप्रैल बरोज मंगल को इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 4 चाकू, 4 टू व्हीलर्स और 5 सेलफोन भी जब्त कर लिए गए हैं। 1 AM के आसपास रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन स्टाफ को मोहम्मद मसीउद्दीन मारा गया है करके एक इन्फॉर्मेशन आया था। उसके ऊपर एक FIR हुआ। इमीडिएटली रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन चालू किए थे। CP सर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक स्पेशल टीम भी बना दिया गया है। आज सुबह उसी टीम के एफर्ट से आज सुबह 8 बजे यादगिरी थिएटर संतोष नगर PS के लिमिट्स में 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। A1 मोहम्मद पाशा जिलानी, मोहम्मद उमर खान, मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद गौसुद्दीन, मोहम्मद तबरेज, सैयद इब्राहिम, सैयद बशीर, मोहम्मद अबू बकर, ये 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये रमज़ान के महीने में डिसीज्ड मसीउद्दीन जो है उनको और A2 मोहम्मद पाशा जिलानी के बीच एक वाटरमेलन शॉप के पास एक झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा थोड़ा बढ़ के बाकी A2 to A8 लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया है। इसी मामले में A1 to A8 जो भी सारे एक दूसरे के फैमिली और फ्रेंड्स हैं, वो लोगों को लाइफ थ्रेट है करके भी एक फियर था कि मसीउद्दीन एक ऑलरेडी एक राउडी शीटर है, इसीलिए वो लोग मसीउद्दीन को मारने के लिए 3 दिन से प्लान कर रहे थे। उसी सिलसिले में 13th नाइट को उनको दबीरपुरा के पास मसीउद्दीन का मूवमेंट्स नजर आए।
उसी समय वो सब एक दूसरे को कॉल करके सब लोग एक पास इकट्ठा होके, क्योंकि प्री प्लान है, उनके पास नाइफ्स भी थे, इसीलिए इमीडिएटली उनको अटैक करके उसको मार दिया गया है। इसी जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कंप्लेंट में 2-3 और लोगों का भी नाम है, जो भी मसीहुद्दीन के भाई है वो, और भी लोगों को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट है। वो सब इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर चालू है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस आता है उसी के ऊपर हम कार्रवाई चालू करेंगे। उसी के ऊपर इसके ऊपर चार्जशीट भी जल्द से जल्द फाइनल करके हम लीगल कार्रवाई जो भी है उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े केयर हॉस्पिटल में मुबैना लापरवाही से एक शख्स की मौत का इत्तला है। बताया गया कि कारवान के साकिन एलिया को केयर हॉस्पिटल में शरीक करा गया था। हॉस्पिटल में ईसीजी के बाद पहले तो ये बताया गया कि कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन 24 घंटों के बाद ये इत्तला दी गई कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब मरीज की तबीयत बिगड़ गई तो ये कहा गया कि उनके पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। इस दौरान मरीज की मौत हो गई। अफराद खानदान ने हॉस्पिटल में एहतजाज किया। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। मजीद तहकीकात जारी हैं। फलकनुमा रैतू बाजार के बाबू दाखिले पर छोटी दुकानों की वजह से मार्केट के अंदर दाखिल होने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में अवाम ने शिकायत की है कि बाबू दाखिले के पास छोटी दुकानें लगा दी जाती हैं और जब लोग यहां से अंदर दाखिल होना चाहते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मुकाम पर मौजूद छोटे दुकानदारों से उनकी अक्सर बहस व तकरार होती है। मुताल्लिक़ा हुकाम से मुदाखलत की अपील की गई है। रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया है, जिसकी मालियत 2,25,000 रुपये बताई जाती है। मंगल की सुबह रेलवे पुलिस और प्रोटेक्शन फोर्स ने मुश्तरका तौर पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 10 पर शक की बुनियाद पर उड़ीसा के इलाके अडावरू से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स बेंजामिन गुमांगू के सामान की तलाशी ली, जिसके बाद 4.5 किलो खुश गांजा बरामद हुआ। यह शख्स उड़ीसा के जंगल जाकर नामालूम अफराद से गांजा मामूली कीमत पर खरीद कर इसे भारी कीमत में फरोख्त करने के लिए पूना ले जा रहा था। विशाखा एक्सप्रेस ट्रेन से सिकंदराबाद पहुंचा और पुणे जाने के जरिए यहां दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इस दौरान उसके सामान की प्लेटफॉर्म पर तलाशी ली गई। उसने बताया कि वो ज़राई मजदूर है और इससे पहले भी पूना में गांजा स्मगल कर चुका है। रेलवे पुलिस के अहदेदार बी साईश्वर गौड़ और एम ए मजीद की क़यादत में दोनों पुलिस फोर्स के अमले ने ये कार्रवाई अंजाम दी। शहर के बाज़ इलाकों में आज दोपहर गर्मी भी हुई और जिस तरह से देखा गया कि बारिश भी हुई, लेकिन सुबह से गर्मी की शिद्दत देखी जा रही थी। गच्ची बोली में गर्मी की शिद्दत से बाइक को आग लग गई, लेकिन किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जाता है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से यह वाकया पेश आया। साउथ जोन टास्क फोर्स ने एक मखसूस इंजेक्शन के फरोख के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और इसमें एक ज्वेनाल भी शामिल है। टास्क फोर्स ने बताया कि एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सैयद असद, अहमद कुरैशी और एक सीसीएल बॉय को गिरफ्तार किया गया। मगलपुरा पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हरीबोली के इलाके में गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 102 मुफरन टर्माइन सल्फेट इंजेक्शन, 3 सेलफोन और इसके अलावा 2 सुइयां बरामद की। इसकी मालियत 1,20,000 रुपये बताई जाती है। टास्क फोर्स ने बताया कि मज़कूरा दवा से दिल की बीमारी व कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, जिसे डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लिया जाना चाहिए। टास्क फोर्स ने केस दर्ज करते हुए मुलजमीन को महज ज़ब्तशुदा अशिया के SHO मगलपुरा पुलिस के हवाले किया है ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस
आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हिंदुस्तानी आजमीन हज का कोटा 1,75,000। हज स्लॉट में कमी के लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर जिम्मेदार, वजारत अक़लियती उमूर की वजाहत। मोदी तेलंगाना की स्कीमों से परेशान, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी और बीआरएस मुत्तहिद, पार्टी लाइन पार न करें। सीएलपी इजलास से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कुशाईगुड़े में 70 साला खातून का मुलाजिम ने किया कत्ल, लाश पर रक्स का वीडियो मंजर-ए-आम पर। हैदराबाद के नवाही इलाके चैतन्यापुरी में वाइल्ड हार्ट पब पर पुलिस का धावा, 27 अफराद बशमूल 17 रक्कासाएं गिरफ्तार। और इन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में मसीउद्दीन के कत्ल का माहौल, 8 मुलजिमीन गिरफ्तार, आलात जुर्म जब्त, मुश्तबा मफरूर मुलजिमीन की भी तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।